Hello. Hello, Anita. Yes, sir. Yeah, look, we are already late. So instead of waiting, shall I proceed with the lecture? I will record it and I will put it on the YouTube. So Okay, sir. others will also get it. They will not face a loss. So they will get this Okay, sir. lecture. Okay. Yes, sir. So were you present in the earlier classes? Like we have almost 4 to 5 lectures or 3 to 4 lectures at least. No, sir, I am not able. Okay, this is the first time you are coming to the class. No, no, I am coming for, but last class I am not there. Oh, and before that? Uh, I'll just check. Otherwise the class was having good participation, uh, Yes, sir. and I think today also they will join. But then also they can get it on the YouTube because your class is taking place only once in a week, and if we wait for this and that, so then syllabus can never be completed. And our motive is not to complete syllabus, but to facilitate that you can learn the basic concepts of it. So I don't think it will be a good idea to wait because they can get it on the YouTube, so they are not facing any loss. So now I am Okay, sir. starting it. Yeah. Yes. So I am teaching you evidence law, and Okay. initially in evidence law, we taught its importance that it is both a procedural as well as substantive law. Because Indian Penal Code will be of no use if you don't have a proper procedure and a proper system to appreciate the evidence. Okay. So then we have this evidence law. So we discussed what is proof, what is disproved, what is not proved, what are documentary proofs, what is relevancy, what is res gestae, what are the relevant facts, how the proceedings takes place, and then we started discussing about admission. So Rajiv Chauhan has entered. Great. Hello, Mr. Chauhan. Hello. Hello, Mr. Chauhan. I think. Good morning to you, Adnan. This is Rajiv. I'm going to be on mute as well. Thank you. Okay, Mr. Rajiv. Thank you so much. I think Mr. Rajiv is traveling. He messaged yesterday that he is traveling. I think he's on the road. He's in the traffic. So, but it's great that he participated. Thank you so much, Mr. Rajiv. Yeah, Anita. So then we started discussing about admissions. And if someone asks what is admission, admission is a statement, oral or documentary, which suggests any inference to any fact, in issue or relevant fact. So this is the basic definition of admission. And admission can be for the benefit of the maker and it can be against the maker. And there were many conditions of this, and they are highlighted from section 17 to 21. So admission is very much clear, and we have discussed in the last classes. And if you don't, if you are not having the clarity regarding admission, is admissions clear to you, Anita? Okay, even though if it is not, okay, even though if it is or if it is not, you can get the YouTube links I will share with you, so you go through those. Okay, sir. Thirdly, the topic which we are going to discuss today is confessions. Confessions. As we discussed earlier, that admissions and confessions are, they belong basically to the same family. They are brethren of each other. But you can say that admission is the genus, confession is the species. Like what we can say that all the professors who teach law, they are bound to be lawyers, but all the lawyers are not professors. So similarly, all the confessions are admissions, but all the admissions are not confession. How? First of all, the statement that admission is a statement, whether oral or documentary, which throws some inference upon an issue. So this is basically what we understand by the term admission.
But what happens in case of confession, when this admission is against the interest of the maker, and it only not stops over there. It is not only against, hello Mr. Manish, it's not only against the maker, but it also shows guiltiness of the maker. So if your statement is making you guilty or inculpating you of some offense, then it becomes confession. So for a confession, the admission should open up for some crime. If some crime is opening up or some crime can be imputed upon the maker, some guilty or some inculpatory statement is made there, then only we can say that it is confession. So now confession is a part or a species of admission, but here it should be against, and not only against the maker of that particular admission, but it should be making that person appear guilty or inculpating him. Inculpating means it is made up of the word culpability, or making him blameworthy for some offense. If this is happening, then it is a confession. Otherwise, it is not a confession. Is it clear, Mr. Manish Gupta and Anita Saxena? Because Mr. Chauhan is on mute today, unluckily. Yeah. Mr. Manish, is it clear? Yeah. Sir, can you give any example? हाँ, एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, फिर से देखें। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप लोग मूवीज वगैरह देखते हैं तो आपने मूवी देखी होगी, इसमें एक बड़ी फेमस मूवी थी अमिताभ बच्चन की भी, जिसमें उसकी वाइफ को कुछ लोग मर्डर करते हैं मिलके, कोई पॉलिटिशियंस एंड पुलिसमैन एंड लॉयर वगैरह। तो उसमें फिर वो अमिताभ बच्चन उनसे बदला लेता है। तो उसमें क्या है कि जब अगर वो कोई ऑफेंस करता है, कोई गलती करता है, कोई क्राइम करता है, तो ही इज एक्टिंग एज ए क्रिश्चियन इन दैट मूवी। तो वो कैथलिक बने हुए हैं, तो वो जाते हैं चर्च में और कन्फेशन रूम में जाते हैं, फादर से कन्फेस करते हैं, जहाँ पे वो बताते हैं कि टुडे आई मर्डर्ड हिम एंड टुडे आई मर्डर्ड दिस, टुडे आई मर्डर्ड एक्स, टुडे आई मर्डर्ड वाई और टुडे आई मर्डर्ड जेड। तो मेरे सिंस को आप माफ करना। तो जहाँ पे एतराफ़ जुर्म होता है, अपने गुनाह को कोई कबूल करता है किसी स्टेटमेंट में, तो उसको हम कन्फेशन कहते हैं। एडमिशन वो चीज़ें होती हैं जिसमें आप कोई चीज़ बताते हैं। एडमिशन इज अ स्टेटमेंट whether documentary or whether oral which throws some inference upon a fact। तो जो इन्फ्लुएंस डालता है, चाहे वो आपके अगेंस्ट हो चाहे आपके बेनिफिट के लिए हो, तो वो एडमिशन है। कन्फेशन क्या होता है? वही आपका स्टेटमेंट, चाहे वो डॉक्यूमेंट के रूप में हो या वेदर इट इज ओरल स्टेटमेंट, अगर इफ इट इज अगेंस्ट यू एंड नॉट ओनली अगेंस्ट, इट ओपन्स यू, इट मेक्स यू गिल्टी और मेक्स यू रिस्पॉन्सिबल और मेक्स यू ओपन फॉर क्रिमिनल ट्रायल, then it is confession, it is inculpatory statement। अब आता है inculpatory का क्या मतलब है। inculpatory का मतलब है जो culpable हो। culpable का मतलब जो ब्लेम वर्दी हो, जो किसी गिल्ट के लिए आपको ओपन करे। तो अगर कोई इस तरीके से स्टेटमेंट देता है, अगर वो इन्फ्लुएंस ये आता है कि यू आर गिल्टी फॉर अ क्राइम, देन इट इज कन्फेशन। मतलब अगर मैं कहूं कि मैंने थाउजेंड्स ऑफ डॉलर की सैफनिंग कर दी है, मैं खुद से बोलूं किसी से जाके, ये कन्फेशन हो गया। मैं इस बात को मान रहा हूँ कि मैंने लाखों डॉलर की जो है इलीगल साइफनिंग करी है, मैंने वो पैसे खुद इस्तेमाल कर लिए। आई हैव मिस एप्रोप्रिएटेड मिलियंस ऑफ डॉलर्स। अगर मैं ये जाके किसी से कहता हूँ, तो यहाँ पे क्या इन्फ्लुएंस ड्रॉ हो रहा है? यहाँ पे ये इन्फ्लुएंस ड्रॉ हो रहा है कि मैंने गलत तरीके से बहुत सारे पैसे मिस एप्रोप्रिएट कर लिए। तो नाउ इट इज ओपनिंग एंड इट इज मेकिंग मी वल्नरेबल फॉर अ क्रिमिनल ट्रायल, क्योंकि इससे पता चल रहा है, इट इज इनकल्पेटिंग मी, मुझे ये क्रिमिनल बना रहा है एक पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए। उसी तरीके से कोई जाके कह दे आई मर्डर्ड सो एंड सो, आई मर्डर्ड सो एंड सो, और समवन सेज दैट आई रेप्ड सो एंड सो, या आई मर्डर्ड सो एंड सो, दैट आई वाज इन्वॉल्वड इन अ पर्टिकुलर रॉबरी। तो ये सारे स्टेटमेंट क्या हैं? ये स्टेटमेंट्स आपको इंक्रिमिनेट कर रहे हैं। दीज आर इनकल्पेटिंग स्टेटमेंट्स। इनकल्पेटिंग मतलब कल्पेबिलिटी से बना हुआ है, ब्लेम वर्दीनेस से हमें ये लाके गिल्टी बना देते हैं। तो ये आपका कन्फेशन होता है। एडमिशन तो कुछ भी हो सकता है कि मैंने जो इसको पैसे दिए, मैंने उसको पैसे दिए, ये एडमिशन है कि हाँ भाई पैसे दिए, या उसने मुझे किराया दे दिया, उसने मुझे किराया दे दिया। पर्सन सो एंड सो हैज गिवन हिज ड्यूज और हिज रेंट टू मी, द पेमेंट हैज बीन मेड, या उसने कॉलेज की फीस जमा कर दी, या आई हैव रिसीव्ड कॉलेज फीस। तो ये सारे स्टेटमेंट है, यहाँ पे कोई क्राइम का नहीं पता चल रहा। ये आपके बेनिफिट के लिए भी हो सकते हैं और आपके अगेंस्ट भी। अगेंस्ट के लिए कोई शर्त नहीं है, बेनिफिट के लिए सेक्शन 21 में 3-4 शर्त बताई हुई है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं, आपको वो यूट्यूब पे मिल जाएंगी। तो ये
ये फर्क है बेसिकली, वो उसका पार्टी है। मिस्टर चौहान आप कुछ कहना चाह रहे हैं शायद, यू हैव अनम्यूटेड योरसेल्फ। जी जी, अदनान, मैं ये कह रहा था कि admission can be made by a third party यस यस saying for example कि मैंने A को B का मर्डर करते हुए देखा, जी। so that's an admission, is that right? देखिए, ए का मर्डर बी को करते हुए देखा तो वो एडमिशन नहीं होगा, वो आप एक सबूत दे रहे हैं, आप एक That's only विटनेस हैं। evidence. हाँ, दैट इज ओनली एविडेंस। वो देखिए कब होता है, मैंने जो Basically कल witness Now, हुआ for ना। example, can I correct myself? Okay, Yes. let's say there's a rape victim called B, हाँ, and she goes to the court of law and says, A raped me. Is that an admission? या that is an admission. Okay, fair That enough. is an- Understand. अब मैं बताता हूँ एक चीज, देखिए इसमें होता क्या है, मैं फिर से आता हूँ थोड़ा सा एडमिशन के ऊपर 1 मिनट के लिए। हमने ये डिस्कस किया था, हम लास्ट क्लास में बहुत सारा डिस्कशन हुआ था। मैंने ये कहा आपसे कि एडमिशन जो होता है वो बेसिकली कुछ नहीं है, एक स्टेटमेंट है, चाहे ओरल हो या डॉक्यूमेंट्री हो, बिल्कुल ठीक है, जो कोई इन्फ्रेंस डालता है किसी रेलेवेंट इशू पे या किसी बिल्कुल। फैक्ट इन इशू के ऊपर। अब इसमें क्या होता है, अब कौन कौन दे सकता है, कौन कौन एडमिशन के लिए एडमिट कर सकता है? तो सबसे पहले पार्टी खुद, यानी कि जिसके साथ हो रहा है या हुआ है वो खुद करेगा। जी। आपने जो एग्जांपल दिया वो थर्ड पार्टी है, ठीक है, थर्ड पार्टी ने देखा कि वो उसको रेप कर रहा था, मर्डर कर रहा, वो थर्ड पार्टी है, तो उसका एडमिशन नहीं होगा, वो विटनेस होगा। एडमिशन कन्फेशन भी पर्सन खुद करता है, लेकिन थोड़े से कन्फेशंस हैं इसमें, थोड़े से एक्सेप्शंस हैं इसमें। देखिए एक्सेप्शंस क्या है, एक तो पार्टी खुद करे या उसका एजेंट या रिप्रेजेंटेटिव करे। मान ले कोर्ट में जाते हैं और मैं आपका वकील हूं और मैंने कुछ आपके बिहाफ पे कह दिया, तो मैं एडमिशन कर सकता हूं आपके बिहाफ में। ये सारी चीजें सेक्शन 17 से 20 में लिखी हुई हैं डिटेल में। Okay. अब दूसरा Thank आदमी you. कब कर सकता है? कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में। यस मिस्टर चौहान, जैसे फॉर एग्जांपल। Thank you very much. I think it's clear to me. Thank you. ओके मिस्टर चौहान, मैं ये चाह रहा हूँ ना, मतलब ये अनीता वगैरह के लिए भी क्लियर हो जाए। मुझे पता है कि Perfect. जी, go ahead. जी, दैट इज द रीजन, आई नो दैट बिकॉज वी हैव डिस्कस्ड इट। हाँ, अब क्या होता है, तो हमेशा एडमिशन विल बी मेड बाय द पार्टी और द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पार्टी। बट कई दफा क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे खरीदना है एक हॉर्स, या मुझे एक कार खरीदनी है फॉर एग्जांपल, या कार बेच रहा हूं मैं किसी को, मान लीजिए मनीष गुप्ता जी को मैं कार बेच रहा हूं, और मनीष गुप्ता मुझे कहते हैं भाई ये कार कैसी है, मैं कहता हूं जाओ जाके मिस्टर चौहान साहब से पूछ लो, गो एंड आस्क मिस्टर चौहान कि हाउ इज दिस कार। तो अब जो मिस्टर चौहान स्टेटमेंट देंगे वो एडमिशन हो जाएगा। बात कुछ क्लियर हुई मिस्टर मनीष एंड अनीता? अब ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि रेलिवेंसी में तो कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल होता है। एडमिशन में कॉमन सेंस तो है ही है, साथ में ये बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स पे चलता है एडमिशन, क्योंकि हमारे वहां सेक्शन 18-19 में दिया हुआ है कि ऐसी केस में थर्ड पर्सन के स्टेटमेंट को भी एडमिशन माना जाएगा, इसलिए हम एडमिशन मानते हैं। अब एक और एग्जांपल मैं देता हूं, थर्ड पार्टी का कब हो जाएगा, जैसे सेक्शन 18 में दिया हुआ पेक्यूनरी इंटरेस्ट। अब मैंने मिस्टर मिश्रा से बोला कि मिस्टर मिश्रा जाइए और सिमी मैम से किराया वसूलिए मेरा। मिस्टर मिश्रा मेरी तरफ से मान लो किराया वसूल करते हैं। मिस्टर मिश्रा ये कहते हैं कि भाई कोई किराया विराया बकाया नहीं है, देयर इज नो रेंट ड्यू ऑन बिहाफ ऑफ यू विद सिमी मैम। बट सिमी मैम का ही स्टेटमेंट आ जाता है कि नहीं बाकी है किराया, तो यहाँ पे अब सिमी मैम का वो स्टेटमेंट एडमिशन हो जाएगा। तो दे आर सर्टन सर्कमस्टांसेस जहां पर थर्ड पर्सन का हम मान लेते हैं कि वो एडमिशन है, अदरवाइज एडमिशन भी खुद पार्टी करेगी या उसका रिप्रेजेंटेटिव, जैसे कन्फेशन में होता है। आई थिंक इट्स क्लियर। तो अब हम फिर से कन्फेशन के ऊपर आते हैं। एविडेंशियरी वैल्यू क्या है एडमिशन की? एडमिशन की एविडेंशियरी वैल्यू ये है कि प्रिमा फेसाई एक प्रिजम्पशन किया जाता है, ये कॉन्क्लूसिव एविडेंस नहीं है, इसको बहुत आराम से आप वो रिफ्यूट कर सकते हैं, रिबट कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाता है कन्फेशन। कन्फेशन क्या है? कन्फेशन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ एडमिशन। यहां पर भी स्टेटमेंट हो सकता है ओरल और डॉक्यूमेंट्री, और यहां पर भी एक इन्फ्रेंस दिया जा रहा है, बट यहां पे इन्फ्रेंस हमेशा नेगेटिव होना चाहिए। एडमिशन में कुछ एक्सेप्शन है जहां पर बेनिफिट के लिए भी वो कह सकता है, बट कन्फेशन में हमेशा इट इज इन द नेगेटिव सेंस, अपने खिलाफ वो दे रहा है। और दूसरा, ही इज ओपनिंग हिमसेल्फ फॉर बीइंग वल्नरेबल फॉर अ क्रिमिनल ट्रायल, वो अपने आप को इनकल्पेट करता है। तो जो इनकल्पेटरी स्टेटमेंट अगर कोई एडमिशन देता है तो दैट इज कन्फेशन। तो मोटे तौर पे
सारे के सारे कन्फेशन एडमिशन है, क्योंकि वो एक इन्फ्रेंस है, एक बियरिंग है उनकी किसी इश्यू पे। बट अगर वो इनकल्पेटरी है एंड दे आर ओपनिंग यू अप फॉर अ ट्रायल, फॉर अ क्रिमिनल ऑफेंस, देन इट इज कन्फेशन। अब कन्फेशन फिर दो तरीके के होते हैं, अब हम इस पर डिस्कस करते हैं। जस्ट ए मोमेंट। मिस्टर मनीष, आर यू गेटिंग द पॉइंट? समझ में आ रहा है मिस्टर मनीष? मिस्टर मनीष, मिस्टर गुप्ता जी, मिस्टर मनीष जी सर। आपको क्लियर तो हो रहा है ना ये एडमिशन और कन्फेशन का इशू? हाँ यस यस, क्लियर हो रहा है सर, क्लियर हो रहा है। ठीक है। अब हमने जब एडमिशन और कन्फेशन की बात कर ली, तो जब भी अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आप आंसर कैसे लिखेंगे? आपने डेफिनेशन देते हुए, चलिए मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार, कि एडमिशन इज अ स्टेटमेंट वेदर इट इज ओरल और वेदर इट इज डॉक्यूमेंट्री, it throws some inference upon an issue or upon a fact in issue. This is admission. It can be for the benefit of the maker, it can be against the interest of the maker, but it can be for the benefit of the maker only under certain circumstances as enshrined under Article 21, and for that matter Article 21 is very important. Then the question comes, who can make admission? The party, the representative of the party, and then under certain circumstances कुछ लोग दे सकते हैं, that is enshrined under Article 18 and 19. ये आपका एडमिशन हो गया। and then you have to say कि admission depends very strictly on the norms and the provisions of the Evidence Act. But in case of relevancy, apart from the norms enshrined under the Evidence Act, it depends upon the rationale of common sense, of prudence. But here prudence is there, but apart from prudence, more credence is given on the strict rules enshrined under the act. तो ये आपका एडमिशन है। Now what is confession? Confession is also a statement, whether oral or documentary, but this statement should be inculpatory. It should be a statement which is opening up the person making it for a criminal trial, for a criminal offense, for a criminal charge. So this is an inculpatory admission. If the admission is inculpatory, then inculpatory मतलब making the maker culpable, making the maker culpable। ये वही culpable homicide वाला है। culpable का मतलब होता है blame worthy, blame worthy, guilty, liable। so now what is confession? अगर मैं अब लिखूं confession is a species of admission it is a statement whether oral or documentary which inculpates the maker. Example, X says that I murdered Y 20 years back. ये है आपका, ये क्या है आपका? ये आपका है कन्फेशन। यस कन्फेशन, ये है आपका। अब जरा बारीकी से एक चीज को देखिएगा। यस कन्फेशन। अब मैं दूसरा स्टेटमेंट आपको यहां देने लगा हूं। A fight ensued between me and Ajay after a few hours. Ajay attacked me with a sword. I was frightened and shocked. I was frightened and shocked. So, to protect myself,
I shot at him when he attempted to attack me. In the melee, he was killed. अब now the moot question is open for all of us. अब ये बताइए कि ये कन्फेशन है या नहीं है? अनीता जी आप बताइए. अच्छा गुप्ता जी आप बताइए. मिस्टर मनीष. कॉमन सेंस से बताइए, फिर हम इसको आगे बात करेंगे, क्योंकि इसमें स्ट्रिक्ट कानून ज़्यादा चलता है कॉमन सेंस से ज़्यादा. यस सर, ये कन्फेशन है. अच्छा मनीष जी कह रहे हैं ये कन्फेशन है. गुड. अनीता जी आप क्या कह रही हैं? सर मैं कह रही थी कि नहीं है. क्यों नहीं है? May I come in? यस मिस्टर चौहान प्लीज. मेरे हिसाब से तो ये एडमिशन ही है, कन्फेशन नहीं है. और वो इसलिए कि जो इस वक्तव्य को दे रहा है, anybody who is making such a statement, first thing is not claiming to be guilty at all. He is actually saying that he is a victim, and therefore it is not admission of any guilt. It is just a statement throwing light or relevancy of the factor. That's it. Excellent explanation. ये जो है basically it is a admission, because from this we can draw certain inferences what happened in a particular issue or in a particular facts in issue. Because for a statement to qualify as confession, it should only give one inference, and that inference is that the person making it is guilty and the statement inculpates him. But here this is the kind of, I mean, what he's trying to say is that he's making an exculpatory statement, that is removing him from the culpability. So it can be an admission, but it is not. One more thing. Yes. Hello. This is also the right of exercising right of private defense. Of course. This is statement. Yes, Yeah. yes, very true. Yes, Mr. Jain, very right. Yes, right of private defense he exercised in his statement. Yeah, right of private defense under which section, Mr. Rajiv Jain? Under which section? Anyone, please? Can't remember, sir. Yeah. Section 100. 100. Okay. Section 100 of the IPC. Okay. Right, sir. तो बिल्कुल ये राइट टू प्राइवेट डिफेंस है. बस ये एग्जांपल देने का हमारा मकसद ये था कि एडमिटेड अनूप मित्रा एडमिट हो गए. चौहान साहब हैं. अच्छा चौहान साहब हैं, ठीक है. सेक्शन 100 में बिल्कुल, लेकिन ये एग्जांपल देने की वजह ये थी कि मैं ये बताना चाह रहा था कि जबकि एक क्राइम का कुछ पता चल रहा है, कुछ उसने किया है मर्डर, लेकिन वो इनकल्पेटरी नहीं है. तो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इनकल्पेटरी होना चाहिए. टोटली मिक्स्ड अप स्टेटमेंट जो है उसको कन्फेशन नहीं मानेंगे. और ये एडमिशन है, ये इन्फ्रेंसेस थ्रो कर रहा है, जैसा कि चौहान साहब ने बताया. तो ये नहीं है. तो अब आपको एडमिशन का भी पता लग गया, कन्फेशन का भी पता लग गया. अब काइंड्स ऑफ कन्फेशन में हम थोड़ी देर में आएंगे. इसी के ऊपर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट केस है. जब आपने कन्फेशन लॉ लिखना है, देन यू हैव टू, आफ्टर एक्सप्लेनिंग and after giving certain ingredients, illustrations, then you have to come up with case law. केस लॉ लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. पकाला नारायण स्वामी, सेम चीज कही गई है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है. पकाला नारायण स्वामी वर्सेस स्टेट ऑफ वर्सेस एम्परर वर्सेस एम्परर. दिस इज केस ऑफ 1939. प्रीवी काउंसिल का केस है. पहले प्रीवी काउंसिल हुआ करती थी सारे जगहों से, जो है ऑल द अपील्स फ्रॉम ऑल द कॉलोनीज, वेदर इट वाज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया, इंडिया, all of them used to go straight towards Privy Council. That was in England, for it was the court of last resort for the colonies, above the federal court of that time. तो इसका बहुत ही ज्यादा पावर था. टेरिटोरियल जुरिडिक्शन पूरे वर्ल्ड में था, जहां जहां भी ब्रिटिश कॉलोनीज हुआ करती थी.
तो पकाला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर में क्या कहा गया था? It was held that a mixed up statement is not a confession. If the maker of the statement does not incriminate himself, the statement will not be confession. The statement will not be confession. एक और केस लिखिए, इसी पे इंपॉर्टेंट है, सेम कंसेप्ट है। पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, AIR 1952 सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे क्या हेल्ड किया गया था? The court is not competent to accept only inculpatory part. Inculpatory part मतलब self incriminating and reject exculpatory part, that is self defense. तो मोटे तौर पे वही बात हो गई जो हमने ऊपर एग्जांपल दिया कि जब तक कि खुले तौर पे if the person making the statement is not directly and without any ambiguousness, without any if and but, if the statement says that this offense has been committed by me and is self-incriminating and inculpatory, then only it qualifies to be a confession. Otherwise, it is not. And a mixed up statement cannot be said to be a confession. It was held in Pakala Narayan as well as in Palvinder Kaur judgment also. It was said that a confession will be there if it is openly stating and self-incriminating. A mixed up part, half inculpatory, half exculpatory and self-defense kind of statement, again, it is basically the same thing. Same thing was reiterated, what was said under the Pakala Narayan case. So these two cases also you have to write while defining confession. So now we have gone through admissions and confessions, and now two parts are very important. अब हमने क्या पढ़ना है यहाँ पे? The other two things which we have to now study is, that is types of confession, अब हमें पढ़ना है 3 टॉपिक में बता दूं आपको क्या क्या कवर करना है छोटे छोटे में। टाइप्स ऑफ कन्फेशन, प्रोसीजर एंड वैलिडिटी,